Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the next lecture from third chapter of our syllabus, which is motion in a straight line, and the lecture number is 8, and the topic which we are going to start is differentiation and its application in physics. We will also understand the concept of instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Okay. Differentiation and its application in physics. So first of all, we are going to understand what is instantaneous velocity. सबसे पहले आप instantaneous velocity देखेंगे क्या होगा. Instant वर्ड से बनता है instantaneous. The definition can be the velocity of an object at a particular instant or at a particular position is known as its instantaneous velocity. For example, if we are having an object moving on a path, straight path है मान लो ये, from A to B, and it moves from A to B with varying velocity. A से B तक ये varying velocity के साथ जाता है. Suppose at A the velocity is u, at B the velocity is v. Okay? और A से B तक जाने में उसकी velocity vary करती रहती है, लगातार vary करती है. It changes continuously. So we may ask two types of question related to velocity on this condition. We can ask what is the average velocity in moving from A to B. Average velocity we can determine very easily. Average velocity is given as कि total distance उसने कितना कवर किया है, total distance upon total time, कितने टाइम में उसने वो distance कवर किया है. You can use this formula to find out average velocity, and it is very simple to calculate. Okay. This formula will give the magnitude of the average velocity. Now, there is one more type of velocity which is known as instantaneous velocity, which we have defined just now. What is instantaneous velocity? Velocity at a particular time या at a particular position. This is known as instantaneous velocity. And suppose now my question is, what is the velocity of this object which is moving from A to A at a particular point P? एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, या एट अ पर्टिकुलर टाइम T, मान लो वो T टाइम पर P पॉइंट पर होता है. तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और इन टर्म्स ऑफ टाइम. टाइम मतलब इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट T. दैट इज व्हाई द नेम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द वेलोसिटी. ओके. तो अगर आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है, उसे कैसे बताएंगे? इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो. देखो, अगर आप इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को, व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा s फ्रॉम A टू B, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s को दोनों साइड से छोटा करना शुरू कर दो, सच दैट कि आप A पॉइंट से भी P की तरफ जाएंगे और B पॉइंट से भी P के पास आएंगे. ठीक है, इधर से भी P के पास आना है, इधर से भी P के पास आना है. डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू डिक्रीज अंटिल यू रीच द पॉइंट P. डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा कर देना है कि सिर्फ पॉइंट P रहेगा वहां पर. ओके, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. इतना छोटा कर देना है. डायग्राम में बेटा हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, otherwise it is very very small displacement. डायग्राम में बड़ा इसलिए बनाते हैं so that it is clearly visible to us. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत छोटा कर दिया. दिस डिस्प्लेसमेंट इट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज रिटन विद ds. लार्ज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds. ओके, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. वेरी वेरी स्मॉल की जगह वी कैन आल्सो यूज द वर्ड infinitesimally small displacement. Okay, so what is this ds? Very very
small displacement, or we can say infinitesimally small displacement, ये भी आप इसको कह सकते हो। ओके, ये ds है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों साइड से इतना कम कर देना है इस गैप को कि उस गैप के अंदर सिर्फ पॉइंट p रहेगा। ओके, नाउ the time taken to cover this small displacement will also be small. This time will also be very small, dt, very small time, very small time to cover ds, जो कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब अगर आप वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम कर दोगे, व्हाट विल यू गेट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, देखो P पॉइंट को कवर करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन, और उस P पॉइंट को कवर करने के लिए जो वेरी स्मॉल टाइम कैलकुलेट करा है आपने, अपॉन dt। ds upon dt will give you instantaneous velocity at point P, and we can write it like this: v is equals to ds by dt. Okay, v is equals to ds by dt. In this form we write instantaneous velocity. This v is at point P. Okay, P point की velocity है, आप इसको vp भी लिख सकते हो as you wish, या simply v रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, v रहने दे सकते हो। Okay, so this is the concept of instantaneous velocity, velocity at a particular point। इसको ऐसा समझो, suppose आप रोजाना अपने घर से ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। ओके, और कोचिंग इंस्टीट्यूट आप किसी दिन पहुंचे एक क्लास करने के लिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचते ही आपसे आपके फिजिक्स के टीचर ने पूछा है, बेटा एक बात बता दो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जब तुम चले घर से, तो घर से चलने के बाद 5 सेकंड्स के बाद तुम्हारी स्पीड क्या थी? दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी स्पीचलेस, आप आंसर नहीं दे पाएंगे इसका। 5 सेकंड बाद कौन देखता है 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड थी? या तो आपको पहले से पता होगा कि मेरे को कोचिंग पहुंचते ही सर पूछेंगे कि घर से निकलने के 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड है, ये बता दो। तो आप क्या करते हैं, आप घर से निकलने के बाद एग्जैक्टली 5 सेकंड टाइम देखने के बाद अपने स्पीडोमीटर की निडल को देखते कहां पर रीडिंग दे रही है, और जाकर कोचिंग पर सर को आंसर बता देते हैं। ओके, इस तरह से तो आप बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह से बता सकते हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और ये है क्या, व्हाट इज दिस? ओके, व्हाट इज दिस? एक्चुअली बेटा this is differentiation and nothing else. This is differentiation. So this is differentiation, and this is how we are going to learn the concept of differentiation and the applications of differentiation in physics. Okay, first of all, your work is, please copy down this information related to instantaneous velocity with its definition, which was flashed on the screen. Now students, so far we have understood the concept of instantaneous velocity, और हमने ये भी देखा कि इसको जिस फॉर्म में लिखा जाता है ds by dt, ds is very small displacement known as infinitesimally small displacement, and dt is the very small time taken to complete this small displacement, very small displacement. Okay, और जिस फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इस फॉर्म को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, या डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन? ये डिफरेंशिएशन क्या है? बट डिफरेंशिएशन इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। ओके, डिफरेंशिएशन आपके लिए मैथमेटिक्स का एक बिल्कुल नया ब्रांच है, जो 11th क्लास में बच्चों को पहली बार पढ़ाया जाता है, एंड इट इज यूज्ड
कॉमनली इन फिजिक्स में बहुत कॉमन है डिफरेंशिएशन का यूज। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे आप क्लासेस को प्रमोट कर रहे थे, धीरे धीरे हमारा मैथ्स का लेवल बढ़ रहा था। देखो इसको समझेंगे इस तरह से, 5th क्लास तक वी ओनली न्यू मैथमेटिक्स। 5th क्लास तक आप सिर्फ मैथमेटिक्स समझते थे। जैसे हम 6th क्लास में आए, वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा समझाया गया आपको कि अलजेब्रा क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, और धीरे धीरे हमें पता चला कि मैथ्स के तो 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, एंड देन व्हेन यू ग्रेजुएटेड टुवर्ड्स द 9th एंड 10th क्लास, आपको 9th 10th क्लास तक आते आते ये भी समझ आ गया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड टू एंगल्स सॉल्व करते हैं। याद होगा आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, देयर वर 6 सच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin cos tan, और बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं। ओके, इसी तरीके से नाउ इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द कांसेप्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, कैलकुलस। और कैलकुलस के होते हैं 2 पार्ट, डिफरेंशिएशन which we are going to learn today and integration. This will also be done in the next class. So कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और कैलकुलस मैथ्स का ही पार्ट है, ये आप समझो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, इसको बड़ी इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? एवरीवन विल आंसर दिस एज 7। ओके, कैसे पता चला आपको कि इसका आंसर 7 है, और कैसे पता चला आपको कि आपको 4 एंड 3 को ऐड ही करना है? ड्यू टू दिस पॉजिटिव साइन, ड्यू टू दिस प्लस साइन। ये प्लस साइन आपको बता रहा है कि आपको 4 एंड 3 के साथ क्या ऑपरेशन करना है। दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर ओवर हियर। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि आपको इन्हें ऐड करना है, मैंने बीच में प्लस साइन लगाया, आपने ऐड ही किया। इसी तरीके से अगर मैं इनके बीच में ये वाला साइन लगाता तो योर आंसर विल बी डेफिनेटली 1, बिकॉज नाउ द ऑपरेटर इज अ माइनस साइन, और सबको पता है कि माइनस साइन के साथ क्या करना होता है। एंड had the question been like this, answer definitely 12. Okay, because now the operator is multiply sign, और multiply के साथ क्या करते हैं, this we have been taught in our previous classes. इसी तरीके से आप ये भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली आवर आंसर विल बी +4 और -4, 16 का रूट। कैसे पता चला कि स्क्वायर रूट ही करना है? क्योंकि हमें बताया गया है कि जब भी आप इस सिंबल को देखोगे तो स्क्वायर रूट कर देना इसका। मींस ये सिंबल्स, ये ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है। इन द सेम वे वी आर हैविंग this d by dt, we can say that this is the operator for differentiation. ये हम कह सकते हैं यहां पर, जैसे यहां पर ऑपरेटर प्लस साइन है, यहां पर ऑपरेटर मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर ऑपरेटर नेगेटिव साइन है, यहां पर ऑपरेटर दिस स्क्वायर रूट का सिंबल है। वैसे आप ये कह सकते हो जहां पर भी आपको ये लिखा मिले d by dt, now what is this t? t की जगह we can have x, we can have y, we can have any other symbol. ओके, जरूरी कि हमेशा t लिखा मिलेगा। d by dt जहां कहीं लिखा मिले, इट मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट। किसे डिफरेंशिएट करना है? जो यहां लिखा होता है। ये एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन कह सकते हो या फंक्शन कह सकते हो, अगर सही से टर्म यूज करेंगे।
ये इक्वेशन या फंक्शन कह सकते हो आप इसको डिफरेंशिएट करना होता है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में डी बाई डी टी कभी लिखा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे 16 का रूट करने के बाद क्या फिर से रूट का सिंबल लगाते हो? नेवर। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फिर से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हो? नो। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशिएशन का एक तरीके से सिंबल है उसे आप दोबारा लगाएंगे क्या आंसर के साथ? नो। ओके, सो डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ओके, वंस अगेन आई विल टेल यू। सपोज d बाय डी एक्स लिखा है इस बार x, ओके, और यहां पर लिखा है y। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहली चीज इससे हमें क्लियर है कि हमें करना क्या है। वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही, जैसे रूट के सिंबल से आपको पता चलता है कि हमें क्या करना होता है। वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट, ठीक है, यही होता है। रूट के सिंबल से आपको पता चलता है कि आपको करना क्या है, वैसे ही इससे पता चलता है कि आपको करना क्या है। ओके, डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है? जो यहां लिखा होगा दिस थिंग, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन कह लो या ये इक्वेशन होगी। ओके, this has to be differentiated. This has to be differentiated. इसका करना है। जैसे यहां पर किसका रूट करना है? जो यहां लिखा होगा its root is to be taken, इसका रूट लेना होता है, यही करना होता है। बिल्कुल ऐसे किसका डिफरेंशिएशन करना है? इस चीज का जो भी यहां लिखा होगा। अब डिफरेंशिएशन जिसका भी करना होगा वो इक्वेशन होगी, और वो इक्वेशन जो यहां लिखा है इसके टर्म्स में होती है। x अगर यहां लिखा है तो ये इक्वेशन x के टर्म्स में होगी। दिस x इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव टू डिफरेंशिएट, ये आपको पता चलता है यहां से। We have to differentiate with respect to x, x के रेस्पेक्ट में करना है। ओके, किसका करना है? y का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। x इज अ वेरिएबल, और y जो भी होगा उसकी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ, नाउ आई एम गोइंग टू दिस, इसका काम पूरा हो चुका है। y is a function या equation in terms of x, x the variable। ये इक्वेशन इसके टर्म्स में ही होगी, हमेशा याद रखिएगा। इसकी इक्वेशन इसके टर्म्स में ही आएगी, मतलब यहां पर जो भी इक्वेशन लिखी मिलेगी वो इस वेरिएबल के टर्म्स में ही होगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको फॉलो करनी होगी। व्हाट इज y इज अ फंक्शन, और वो फंक्शन x की टर्म्स में होगा। x क्या है? x एक वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। किसका करना होता है? y का करना होता है। कैसे पता चला? इस dy dx से पता चला कि डिफरेंशिएशन करना है। ओके, इस तरह से तो आप डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे। डिफरेंशिएशन करते कैसे, रूल्स क्या है वो भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल, अगर आपको कहीं पर ये लिखा मिल जाए d by dx of x to the power n, now compare it with this। d by dx से पता चला कि डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? y। देखो y की जगह पे लिखा है x की पावर n, दिस इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल x ओनली, ये बताया मैंने आपको। ओके, इस तरह से अगर कुछ लिखा मिल जाए आपको कहीं पर भी
x टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट डायरेक्टली आएगा n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। बेटा जब भी एक अलजेब्रिक, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जब भी किसी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो उसकी जो भी पावर होती है वो ओरिजिनल पावर तो इसके कोएफिशिएंट में आ जाएगी और x की पावर 1 डिक्रीज हो जाती है, एक से डिक्रीज हो जाती है। ओके, जो भी अगर यहाँ पर पावर 6 है तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 10 9 माइनस 1 9 हो जाएगी। ओके, दिस इज द आंसर फॉर डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन के आंसर में डिवाइडेशन नहीं आएगा। ओके, जैसे स्क्वायर रूट के आंसर में दोबारा से स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं आता, बिल्कुल वैसे। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कहीं लिखा है dy dx ऑफ x टू द पावर 7, तो आंसर विल बी ओरिजिनल पावर तो कोएफिशिएंट बन जाएगा इनटू x टू द पावर 6, एक पावर कम कर देनी है बस। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, उसकी एक पावर कम कर दो और ओरिजिनल पावर कहां जाएगी, कोएफिशिएंट में जाएगी, उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके साथ जाएगी। ओके, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, if there is already a constant written with x to the power n, अगर x to the power n के साथ कोई कांस्टेंट लिखा है, a क्या है, a is a constant, तो ये कांस्टेंट आपको एज इट इज कॉपी कर देना है और बाकी फिर डिवाइड dx ऑफ x की पावर n, ये वाला रूल इसमें लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर दो और बाकी के साथ जो रूल था वो आप वापस लगा देंगे। इफ a इज अ कांस्टेंट, याद रहेगा। थर्ड रूल इज कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी कांस्टेंट का, ओनली एंड ओनली अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, देखो a कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो आंसर विल बी 0। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर 0 आता है, रिमेंबर दिस। ओके, 3 रूल हो गए। नाउ द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इज फॉर फोर्थ रूल dy dx ऑफ, चलो अब की बार x की जगह कुछ और ले लेते हैं, dy d थीटा, या तो कुछ भी हो सकता है ना, नाउ थीटा इज द वेरिएबल, मैंने आपको बोला x y t थीटा कुछ भी हो सकता है, dy d थीटा ऑफ sin थीटा। नाउ चेक दिस अगेन, दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो x होगा तो x के टर्म्स में इक्वेशन थी, x थीटा है तो थीटा के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या है, sin थीटा, दिस y इज इक्वल्स टू sin थीटा होगा इधर। ओके, यहां पर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर xm है। ओके, sin थीटा का डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रेस्पेक्ट में ही आप कर रहे हो तो आंसर इज cos थीटा, एंड सिमिलरली अगर आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आंसर sin थीटा तो है बट विद अ नेगेटिव साइन, रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन। cos थीटा के डिफरेंशिएशन में माइनस sin थीटा, बट sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। अभी आप सिर्फ ये 5 रूल्स कह सकते हैं, 5 फॉर्मूले याद कर ले डिफरेंशिएशन के लिए, अभी आपके लिए यही एनफ है। दिस मच इज एनफ फॉर यू फॉर द क्वेश्चंस, फॉर द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। ओके बेटा, रिमेंबर दिस, वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन फॉर आवर फिजिक्स क्लासेस, हम डिफरेंशिएशन को अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस के लिए नहीं सीख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के लिए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो स्टूडेंट मैथ्स के लिए हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी तक आपको मैथ्स के टीचर ने डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया होगा। ठीक है, जब तक मैथ्स का टीचर आपको डिफरेंशिएशन सिखाएगा तब तक हमें फिजिक्स में काफी जगह पर डिफरेंशिएशन लगानी है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस मच ऑफ डिफरेंशिएशन कि आप डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में सही से अप्लाई कर सके। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये समझे आप। कॉपी करें बाकी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, कि हम
कहां कहां पर डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में अप्लाई करते हैं या कर सकते हैं। ओके, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज या एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का यूज या एप्लीकेशन फिजिक्स में मेनली दो जगह पर होता है। नंबर वन, when you have been asked to find out the rate of change of one quantity with respect to the other quantity, rate जहां निकालना, rate मतलब rate of change of one quantity, मतलब quantity one quantity with respect to, या quantity A कह लो इसको, quantity A with respect to other quantity, मतलब quantity B, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है velocity, it is a rate of change of displacement, तो displacement का change with respect to time कर रहा होगा, तो we can use differentiation। That is why in the start of the class we have written V is equals to ds by dt। आज की क्लास के स्टार्टिंग में लिखा था हमने V is equals to ds by dt। ठीक है, what is this? This is the rate of change of displacement with respect to time। okay, so जहां भी आपको रेट कैलकुलेट करना होता है वहां we can use differentiation। जैसे कि rate of change of velocity is acceleration, so we can write A is equals to rate of change of velocity dv by dt, and remember that dv is very small change in velocity and dt is a very small time required for this change in velocity। okay, yeah, this is instantaneous velocity and this is instantaneous acceleration, the acceleration of an object at a particular time or at a particular instant, sorry, the acceleration of an object at a particular time or at a particular position is known as its instantaneous acceleration। okay, so this is instantaneous velocity and this is instantaneous acceleration। instantaneous velocity and this is instantaneous acceleration। okay, रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, we have to, if we want to measure the rate of change of one quantity with respect to other, then we will use differentiation। always remember this। okay, now the second kind of application is whenever we are required to find out slope, किसी भी ग्राफ में आपको स्लोप निकालना होता है। सेकंड वन, to calculate slope of a given curve, कर्व मतलब जो ग्राफ पर आप कर्व बनाते हैं, ठीक है, वो कर्व। तो अगर आपको किसी कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है देन वी कैन यूज डिफरेंशिएशन। किस तरह से करेंगे, देखो अगर आप ग्राफ की बात करते हो, ग्राफ पर एक y एक्सिस होता है, एक x एक्सिस होता है, ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, एंड सपोज आई एम हैविंग अ कर्व, दिस इज y एक्सिस एंड आई एम हैविंग अ कर्व लाइक दिस, I am having a curve like this, ये मेरा कर्व, ठीक है। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स बनाने सिखाए गए हैं, पहले स्ट्रेट लाइन लेते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है, इफ दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप हर जगह पर सेम होती है, वेदर इट इज हियर x1 पर या x2 पर या x3 पर या x4 पर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी दो पॉइंट बात करो, कोई भी दो पॉइंट का मतलब क्या है, आप कहीं भी ले सकते हो वो दो पॉइंट्स। अगर आप कहीं भी ले सकते हो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर स्लोप इक्वल ही होगी ना। स्लोप मतलब इट्स इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, इसका ढलान जिसे आप हिंदी में नॉर्मली बोल देते हैं, वो हर जगह पर इक्वल ही है ना, बिकॉज़ इट इज स्ट्रेट लाइन, तो इसकी स्लोप सब जगह पर सेम है। ठीक है, आप कहीं से भी कैलकुलेट करो। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, ट्रायंगल बना लिया दो पॉइंट्स के साथ, परपेंडिकुलर, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर, चेंज ऑन y एक्सिस, यहां से यहां तक का चेंज, इसको डेल्टा y कह सकते हो ना, चेंज ऑन y एक्सिस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज दिस, चेंज ऑन x एक्सिस, x4 x2 होगा यहां पर, इसको डेल्टा x बोल सकते हो। यही तो स्लोप होता है।
स्लोप इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, ये स्लोप होता है। अभी डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालने की जरूरत क्यों है हमको? स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो क्या होगा? देन व्हाट विल वी डू? देखते हैं तो हम क्या करेंगे। सपोज the graph is like this in the form of a curve, not a straight line. Now how to find out the slope? मैंने आपको पहले भी बताया था स्लोप टेंजेंट ही तो होता है, स्लोप इज टेंजेंट, ओके, बिकॉज हम लिख सकते हैं, आप अभी परपेंडिकुलर कौन बेस कर रहे हो किसी भी ट्रायंगल में। अभी आपने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था यहाँ पर जिसको ये डेल्टा y डेल्टा x कर रहे थे, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? यही तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, और इसी को आप स्लोप बोलते हो। तो tan मतलब टेंजेंट ही स्लोप होता है, याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। और ये वही टेंजेंट है जिसे आप सर्कल के लिए टेंजेंट बोलते हैं ना, लाइन टचिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। ये टेंजेंट टू द सर्कल, ये और भी चीजों के टेंजेंट हो सकते हैं, किसी भी कर्व का टेंजेंट बनाया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कर्व पे पॉइंट x1 पर स्लोप कितना होगा, तो यहां पर स्लोप निकालने के लिए मेरे को यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं हम लोग, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर स्लोप बताओ कितना होगा, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे x2 पर। इस तरह से टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं आप लोग, ठीक है। दिस टेंजेंट गिव्स स्लोप बिकॉज स्लोप टेंजेंट ही होता है, ओके। अब यहां पर आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखना है हमको। सो दिस इज माय कर्व और मेरे को यहां पर स्लोप निकालना है। इसको स्लोप निकालने के लिए सपोज मेरा एक लाइन ये वाला है और ये x1 है, ये x2 है। अब मेरे को क्या करना है, ये x1 पॉइंट इस p पॉइंट के इधर से पास लेकर जाना है, इसको इधर से पास लेकर आना है। जब आप इसको यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे तो लाइन विल बी लाइक दिस, और पास लाओगे तो लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करते करते जब बिल्कुल p पर आ जाओगे तो लाइन विल बी लाइक दिस, यू विल गेट दिस टेंजेंट। मींस कहां तक पहुंचना है? अभी इतना बड़ा डिस्टेंस चेंज इन y और इतना बड़ा चेंज इन x, यहां तक नहीं आना है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, इस p पॉइंट के लिए देखो, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, जिसको हम क्या बोलते हैं dy, अपॉन वेरी वेरी कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन x, जिसको हम क्या बोलते हैं dx। तो dy by dx अब क्या हो जाएगा? ये तो स्लोप है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो किसी कर्व की एक गिवन पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो यूज डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स में हमारे दो मेजर यूजेस या एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट रेट एंड डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू find out slope, okay. You may copy this also. And now students, we are going to understand this differentiation with the help of some examples. और examples भी मैंने ऐसे select किए हैं which we generally encounter in our physics problems. वो examples जो आप अपने physics के problems में generally देखोगे, okay. So let's begin with some examples and then we are going to conclude this lecture. And now students, we are going to practice some questions of differentiation. और ये सारे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में इन्वॉल्व जो डिफरेंशिएशन होती है नॉर्मली एंड बेसिकली इस चैप्टर में जो इन्वॉल्व है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ओके। सो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये हमारे फर्स्ट लेसन है डिफरेंशिएशन का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे और आपको मेरे साथ इन्हें सीखना है यहाँ पर, ठीक है। सो वी हैव टू डू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। dy dx ऑफ, बोलने का तरीका भी यही है जो मैं बोल रहा हूं, dy dx ऑफ x to the power 10। Now how are you going to solve it? Solve करना है, देखो, it means we have to differentiate x to the power 10 with respect to x। कौन सा रूल लगाएंगे? algebraic equation है, this is algebraic equation, algebraic function। तो algebraic function का रूल क्या होता है? whatever is the power of the
वेरिएबल की जो भी पावर है वो पावर कोएफिशिएंट में आएगी और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी, 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। ओके, ये 10 यहां आ जाएगा और x की पावर एक कम करके आपको लिख देना है। दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, दिस इज द आंसर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड वन इज you have to solve d by dx of 6x to the power 5, 6x to the power 5. Now which rule you are going to apply here? देखो 6 is the constant, so constant को तो आपको as it is कॉपी कर देना है, constant कॉपी हो गया। now multiplied by, now x to the power 5 को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? पावर इज 5 तो 5 तो कोएफिशिएंट बन जाएगा x का और x की पावर को एक कम कर देना है, x to the power 4. So the answer will be 6 5 30 into x to the power 4. इसका आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का। ओके, now one more. You have to solve d by dx of x to the power 10 plus 6x to the power 5. Come on, solve it on your own. आपको ये सॉल्व करना है। Solve this on your own. Pause the video. देखो यहां पर इस इक्वेशन में x की पावर 10 प्लस 6x की पावर 5 है, प्लस से पहले का अलग कर दो, प्लस के बाद का अलग कर दो। इट मींस दिस इज d by dx of x to the power 10 plus d by dx of 6x to the power 5. Now these two questions we have already done. So x to the power 10 का आंसर होता है 10x to the power 9 प्लस इसका आंसर 6 5 30 x to the power 4। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो इश्यूज, डायरेक्टली भी कर सकते हो। x to the power 10 को आप कर सकते हो 10 into x to the power 9 और 6 एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर 5 into x to the power 4, 6 5 30 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, नाउ वन मोर, डिफरेंशिएट दिस d by dy, वेरिएबल कैन बी y आल्सो। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, x y z s t u कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में इक्वेशन होगी, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, d by dy of y to the power 6 plus b y square plus c. Now solve this. d by dy means you have to differentiate with respect to y, this equation. इसको सॉल्व करना है। देखो y to the power 6, the answer will be 6 into y to the power 5. Now b is a constant, copy it as it is, 2 y to the power 1, एक पावर कम हो जाएगी, and c is only the constant, सिर्फ constant अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, so that the answer becomes 6y to the power 5 plus 2by only. Okay, don't copy this solution, try to solve this on your own, then match with my solution. फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करो। वो वीडियो को पॉज कर सकते हो आप हर क्वेश्चन पर, you may pause the video on each and every question and then try yourself and then match your solution with that of the mind, with that of mine. Okay, next one, d by dt of d by dt करना है। ओके, where t is any variable, t can be time, t टाइम लेते हैं ना फिजिक्स में। so d by dt of ut, where u is constant, u constant आपको बताया गया। now solve this, take your time, take 1 minute and solve this and come back. I hope you have solved it. Now check it here. देखो u is a constant, so constant को तो as it is कॉपी करना है, t is the variable, ये t में इक्वेशन है। देखो this equation is in t,
So u is a constant. अब ये t वेरिएबल है. What is the power? t to the power 1. तो t to the power 1 यहाँ जाएगा और t to the power 0 उसकी एक पावर कम हो जाएगी. So t to the power 0, anything to the power 0 is 1 only. So u into 1, this is u only. Okay, ut का डिफरेंशिएशन u आ जाएगा. ut का डिफरेंशिएशन u आ जाएगा. Okay, ut का डिफरेंशिएशन with respect to t is u. With respect to t it is u. Okay. Next one, d by dt of at square. This time a is a constant. इस बार a को constant माना गया है. Now try to solve this. Pause the video for 1 minute. Take 1 minute time and try to solve this, and then come back and match the answer with that of mine. Now here's the solution. देखो a is constant, तो copy it as it is. a multiplied by constant को copy करने के बाद you have to multiply. जो भी आंसर आना है उसके बाद multiply आएगा. Now t square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t to the power 1. So it means the differentiation is 2at. The differentiation is 2at. Okay, the differentiation is 2at. Next question. Question can also be written like this. 7th one. Differentiate s with respect to t, where s is equals to ut plus half at square. Differentiate s with respect to t, where s is equals to ut plus half at square. This is the question. Now how can you solve this? कैसे solve करोगे आप इसको? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू सॉल्व दिस ds by dt. ये सॉल्व करना है आपको. ds by dt where s is this. देखो now t is the variable. अब ये s क्या है? इस s की इक्वेशन t की फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आप इस डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं. और देखो इस s की इक्वेशन को t की फॉर्म में दिया गया है आपके पास. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस d by dt of s के प्लेस पर ut plus half at square. Now solve this on your own. Pause the video, take a minute time, and then come back and match the solution with that of mine. Now here is the solution. देखो ut पहले इसको करेंगे, प्लस से पहले वाला अलग, प्लस के बाद वाला अलग. अगर नेगेटिव साइन होगा तो उसके लिए भी ऐसे करते हैं. नेगेटिव से पहले वाला अलग कर दो, नेगेटिव के बाद वाला अलग कर दो. ut. Now in ut u is constant. इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है. u is constant, copy it as it is. Now t dt by dt 1 होगा. सो ये तो u into 1 हो गया. u ओके, याद करो यहां पे सोल्व किया हुआ है. देखो ut का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में u होता है. ये वाला पार्ट ये रहा. Now half at square. Copy half as it is. Half is a constant. A is also a constant. Acceleration. Equation of motion में acceleration constant होता है. Uniformly accelerated motion. You should remember this. Okay. So A is constant. उसको भी ऐसे कॉपी किया. तो half is a constant. उसको ऐसे ही आपने कॉपी कर लिया है. Okay. Now t square. T square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d by dt of t square. t square का डिफरेंशिएशन होगा 2t. 2 को आगे ले आए, t की पावर 1 कम कर दी 2t. सो इसका डिफरेंशिएशन 2t है. प्लस से पहले का अलग, प्लस के बाद का अलग, अलग अलग ब्रैकेट्स में सेपरेट कर दो, गलती कभी नहीं होगी. यूज ब्रैकेट्स, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी अगर आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे. नाउ दिस 2 कैंसिल्स 2, सो इक्वेशन बिकम्स u into 1, u plus at. क्या सॉल्व किया आपने? ds by dt को सॉल्व किया है. u plus at. Now what is this? u plus at is the first equation of motion. So what we are getting here, अगर आप रियलाइज करो थोड़ा सा,
अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहां क्या होता है, v v इज इक्वल टू v प्लस dt, ये v ही तो है, ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt स्मॉल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज velocity, instantaneous velocity. Okay, so this is v, this is velocity at a time t, instantaneous velocity at a time t, instantaneous velocity. Okay, so if you are differentiating second equation of motion which is displacement with respect to time, you will get first equation of motion which is velocity. Remember this, note down this, very very important. अलग से इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट लिखिए, कुछ भी करिए, याद रहना चाहिए आपके ये बिल्कुल अलग से। इफ वी डिफरेंशिएट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v is equals to u plus at. And now the last one for today's lecture, the last one for today's lecture, ninth question. Differentiate v with respect to t, where v is velocity, t is time, and v is given as u plus at. U is initial velocity and a is constant, which can be acceleration. Okay, so now we have to differentiate v with respect to t. What is the meaning of this? V with respect to t differentiate करो means dv by dt करो, ये इसका मीनिंग है। डिफरेंशिएट v with respect to t means dv by dt करो। अब आपको क्या करना है, t is the variable, t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इट मींस v की इक्वेशन t की फॉर्म में चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस। एंड इट हैज बीन गिवन, v की इक्वेशन t की फॉर्म में ये रही, सो v के प्लेस पर आप क्या लिखने वाले हैं, u plus at। नाउ डिफरेंशिएट, प्लस से पहले का अलग, प्लस के बाद का अलग। Now give it a try, do it yourself, pause the video for a minute and then come back, we will make the solution. Now look here for my solution, प्लस से पहले अलग u is a constant और सिर्फ constant है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, जीरो। Now प्लस के बाद का अलग a is a constant, copy it as it is, t dt by dt is 1, nothing else, a into 1 is a, means we have got dv by dt as a, and what is a? A is acceleration, and this is what we have been taught in our class, कि acceleration which is instantaneous acceleration can be written as dv by dt. Now come on, copy this. बेटा सारे क्वेश्चंस आप कॉपी कर ले, खुद सॉल्व करते करते कॉपी कर सकते हैं। ओके, जहां जरूरत हो वहां वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, डोंट लीव एनीथिंग हियर। So students, in this lecture we have seen that what is differentiation and why is it used in physics। दो चीजों के लिए यूज करते हैं, अब तो आपने याद कर लिया है, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स आपको बताए गए, जो बेसिक रूल्स हैं आपके यहाँ पर फिजिक्स में यूज होने वाले। एंड देन वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन एफिशिएंटली। Okay, now what are the takeaways for you from this lecture? Let us summarize. देखो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने इस चैप्टर के लिए सीखी हैं वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी can be written as v is equals to ds by dt
ds is very small change in displacement and dt is the small time taken for that displacement. Okay, similarly instantaneous acceleration of an object can be written as a is equals to dv by dt, where dv is very small change in velocity and dt is the small time in that change taken for that change. Okay, a is dv by dt. Now I am going to use these two equations like this. देखो आप a is equals to dv by dt होता है. ओके, इस इक्वेशन को मैं ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूजिंग ds. नाउ दिस ds and this dt, they can be written as ds upon dt can be written as v. We can write it as v. So a is equals to ये वाला v, फिर dv by ds. This is also one of the equations which is widely used in various physics questions. Okay, it is widely used in various physics questions. इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ds को इधर ले जाएं अगर, तो ads is equals to vdv. This is the other form to learn this equation, the same equation, other form of this equation. ठीक, 1, 2 and 3. These are the three forms of equations in calculus, which are widely used to solve questions and numericals in physics. Now you must remember equations of motion, three equations of motion which we have written earlier for uniformly accelerated motion. एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आप थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं ना, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and then we also write v square minus u square is equals to 2as. ये इक्वेशंस आप लोग लिखते हैं. ओके, आप ये कह सकते हो कि लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलस में ये वाली इक्वेशन होती है, दिस वन. ओके, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वो इक्वेशन आपको इस इक्वेशन के एनालिसिस होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी. ठीक, ये आप कह सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, these are the equations used in calculus. याद रखिएगा. बाकी इनका यूज कैसे करना है फर्दर टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल, दैट वी विल डिस्कस इन द कोरेस्पोंडिंग कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल सेशन only. Okay, so that's all for the lecture today. Wish to see you in the next class. Till then, bye bye.